Hello students, good afternoon, welcome to yet another session of Akash Baiju's NEET. So we are at the end of capacitors today. Today we are going to study RC circuits. And you know what's so important here? See, we have already studied about resistor circuits in current electricity. And we have studied about capacitor circuits in capacitors. Now we are going to take all of that knowledge, all of that concept and combine them together in RC circuits where we will have resistors and capacitors both together in the circuits, right? So let's get started. Without further ado, here we go. I have a very interesting thing to talk about here. Right? So you remember when we started capacitors, in the first lecture of capacitors, we were talking about what are the practical applications of capacitors, right? And we ended up discussing about defibrillators as well. Yes, and more interestingly, see, when you become doctors, right, and you get, say you're working in emergency and you get a patient who has had heart failure, whose heart is not beating anymore, what do? You use a defibrillator, and do you understand that while using a defibrillator, interestingly, you create an RC circuit, right? Did you know that? I bet you didn't. Let me explain it to you how. What does a defibrillator do? Defibrillator is a capacitor, right? High capacity capacitor. So, you take a defibrillator, you charge it with a high voltage first, right? In movies also you must have seen ki 300 volts, 400 volts, high voltage se charge kar diya. Then what? The capacitor is charged now, it contains a lot of charge, and as soon as you take the conducting paddles, right, and attach them to the chest of the person, what happens? Yahan pe circuit complete ho gaya, right? Because a human body is conducting, the circuit gets completed and the charged capacitor immediately discharges all of its charge, right? This is a discharging RC circuit. And resistor kahan se aaya? See, capacitor to hai yahan par. The thing is, although human body is a conducting material, it's not a perfect conductor, right? Nothing is a perfect conductor or a perfect insulator. Yahan par bhi, here are the 2 points, right, where the paddles are connected. This is the region of the human body in between, which will have some resistance to the flow of charge. Here is your resistance. Here is your capacitance. You have an RC circuit where the capacitor is discharging all of its charge. जैसे ही अचानक से ये पूरा charge discharge होता है, it passes through the heart, right? Heart को झटका लगता है और क्या होता है? It has a very good probability to get started again, right? That's the entire procedure. See, RC circuits literally saving lives. अब आप जब RC सर्किट पढ़ रहे होगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो पढ़ना चाहिए. क्यों? क्योंकि it saves lives, right? Here we go. Now, let's get to the fundamentals of RC circuits, right? RC circuits में क्या क्या है हम बहुत बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ेंगे इसको. The first is charging RC circuits, right? So, charging RC circuits are basically when we are charging capacitors. Then, discharging of capacitors, right? So, discharging RC circuits क्या है? जहां पर हम capacitors को discharge कर रहे होते हैं. Then, we've got steady state behavior and examples, right? So, जितने भी concepts हमने पढ़ लिए, वो सारे के सारे concepts हम apply करने वाले हैं in solving questions so that all of your concepts get completely solidified, right? Okay, let's get started with the first one. Before we do, rather, guys, make sure you share this session with your friends, with your classmates, seniors, juniors, जो भी लोग NEET के लिए prepare कर रहे हैं, उनके लिए ये session additional advantageous session होगा. Alright? Okay. Charging RC circuits, right? Charging RC circuits की जब हम बात करते हैं, तो effectively, as I said, we are using the circuit to charge a capacitor. अब capacitor को charge करने के लिए क्या use करेंगे? Battery use करेंगे. So of course there will be a battery in the circuit as well, right? चलो, let's look at some examples. RC circuits क्या होते हैं? There is, see, a capacitor
two resistors here. That means the elements that are in the circuit are either capacitive elements or resistive elements, right? तो ये एक तरीके का RC सर्किट है. यहां पर चार्ज्ड कैपेसिटर होगा जो कि डिस्चार्ज हो रहा है. That's what happens in a defibrillator as well. Now, in case of a charging RC circuit, मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हो तब आपके पास एक बैटरी भी होनी पड़ेगी सर्किट में, राइट? सो हियर वी गो. हियर वी हैव गॉट अ कैपेसिटर, अ रेजिस्टर एंड अ बैटरी. जैसे ही आपने अनचार्ज्ड कैपेसिटर लिया और उसको बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया थ्रू दिस सर्किट, द चार्जिंग हैपेंस एंड दिस इज अ चार्जिंग आरसी सर्किट. चलो, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि होता क्या है. आगे बढ़ते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल प्रॉपर्ली कि जब चार्ज होता है तो किस रेट से चार्ज हो रहा होता है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैसे चेंज होता है, करंट कैसे हम लिख सकते हैं सर्किट में, राइट? ऑल ऑफ दैट. सो हियर वी हैव गॉट चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, राइट? मतलब क्या, यहां पर मेरे पास एक बैटरी है, ये कैपेसिटर है, रेजिस्टर है. जैसे ही मैंने ये स्विच क्लोज किया वैसे ही अनचार्ज्ड कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा, राइट? चार्ज हो रहा है मतलब कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज आ रहा है. आ कहां से रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, राइट? तो जैसे ही से ये सर्किट क्लोज होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी स्टार्ट्स गिविंग आउट चार्ज, राइट? फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इज व्हाट? करंट, राइट? तो यहां पर हम बोल सकते हैं यहां पर करंट हो रहा है सर्किट में. ओके. Now, as this charge flows from positive terminal of the battery to this plate, right? Nearest plate पर charge आएगा. क्या होगा? ये positive charge deposit होने लग जाएगा. Let's say at any given time t, Q charge है ये, right? अब ये Q charge क्या हो रहा है? Increase हो रहा है, of course. पहले तो कुछ भी charge नहीं था. फिर धीरे धीरे ये increase हो के completely fully charged हो जाएगा कैपेसिटर. ओके. पॉजिटिव प्लेट ये बन गई तो दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, राइट? प्लस क्यू माइनस क्यू, एंड देन व्हाट विल हैपन? देन द रेस्ट ऑफ द प्लस क्यू चार्ज विल मूव ऑन थ्रू द सर्किट, गो बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल, राइट? ओके, सर्किट कंप्लीट है हमारा. और द रेट एट विच दिस चार्ज इज फ्लोइंग, right? The rate at which charge is flowing in the circuit will be current. And do you see that? कैपेसिटर में जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, राइट? वो कहां से डिपॉजिट हो रहा है? बैटरी से डिपॉजिट हो रहा है. कहां से फ्लो होके आ रहा है? सर्किट में से फ्लो होके आ रहा है. ओके, सो द रेट एट विच चार्ज इज फ्लोइंग इन द सर्किट इज द सेम रेट विद विच चार्ज इज बीइंग डिपॉजिटेड ऑन द पॉजिटिव प्लेट एज वेल, राइट? मतलब the rate at which charge is flowing in the circuit, which is current, is equal to the rate at which Q is increasing, dQ by dt. ये बोल सकते हैं हम, right? Now, I want to find out more about this charge, right? More about this current. कैसे ये टाइम के साथ वेरी करता है, कैसा वेरिएशन है. कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी गिवन टाइम? अगर कोई मुझे बोलता है 10 मिली सेकेंड में कितना करंट होगा, कैन आई फाइंड दैट आउट? कैन आई फाइंड आउट 10 मिली सेकेंड के टाइम पर कितना चार्ज होगा? लेट्स फाइंड ऑल ऑफ दैट आउट. ओके, फॉर दैट let's write an equation which will involve charge, current, etc. कौन सी इक्वेशन लिख सकते हैं हम? भाई हमारे पास सर्किट क्लोज्ड है, केवीएल तो लगा ही सकते हैं. चलो लगा लेते हैं. ओके, सो हियर वी गो. केवीएल हम जैसे ही लगाते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ए, ऑलराइट, एंड वी कैन से दैट कि क्लॉकवाइज जाते हैं करंट की डायरेक्शन में. वीए से स्टार्ट किया. As soon as we cross the capacitor, हम कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ. ड्रॉप आएगा मतलब माइनस. कितना ड्रॉप आएगा? Q by C, because it's a capacitor. Q by C. Then कैपेसिटर के बाद हम रेजिस्टर को क्रॉस करेंगे, राइट? Again, we are going across the resistor in the direction of current flow. In the direction of current flow, ड्रॉप आएगा. कितना ड्रॉप आएगा? IR के बराबर, V equal to IR, राइट? तो I into R, ये हो गया ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर. अब चलो वापस कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए. मतलब अब हमको बैटरी को क्रॉस करना है. बैटरी को कैसे क्रॉस कर रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब राइज आएगा. प्लस कितना राइज आएगा? EMF के बराबर. कहां पहुंच गए? वापस पॉइंट ए. That's it. This is equal to VA. VA gets cancelled out, and here we go. We have an equation, right?
ओके अब यहां पे हम बोल सकते हैं कि सी आई आर को RHS में लेके जाती हूं मैं एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं IRC दिस इज इक्वल टू EC माइनस Q राइट ओके अब I can be written over here as CE minus Q divided by RC and this I is nothing but dQ by dt right एक इक्वेशन में दो वेरिएबल रखोगे तो कैसे सॉल्व होगा नहीं होगा तो इसीलिए I इज अ वेरिएबल करंट भी वेरिएबल है चार्ज भी वेरिएबल है एक को दूसरे के टर्म में लिखना जरूरी है तो चलो करंट को हम रिप्लेस कर देते हैं dq by dt से लेट्स डू दैट एज सून एज आई रिप्लेस द करंट फ्रॉम विद dq by dt ये क्या आ गया मेरे पास ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन वी नो हाउ टू सॉल्व इट राइट चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लेंगे अच्छा जैसे ही हमने इसको रीअरेंज किया हमारे पास क्या आया dq by CE minus Q is equal to dt into 1 by RC राइट अब देखो यहां पर इंटीग्रेट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं हियर 1 by RC is a constant it will come out of the integration right इंटीग्रेट कर रहे हैं लिमिट्स भी लगा सकते हैं लोअर लिमिट विल बी इनिशियल वैल्यूज t बराबर 0 पर चार्ज कितना था 0 कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड मतलब 0 इनिशियल लिमिट हो गई t बराबर 0 पर q बराबर 0 फाइनल लिमिट्स कैन बी रिटन अपर लिमिट्स विल बी व्हाट करंट वैल्यूज राइट नॉट द करंट बट अभी वाली वैल्यूज okay so at t time charge will be q charge okay अब हमारे पास एक सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया है हमें मालूम है कैसे इंटीग्रेशन करना होता है चलो फटाफट इसको कर भी लेते हैं here we go 0 to q right 0 to q dq by CE minus Q here we go integral 0 to q dq by CE minus Q this is equal to 1 by RC integral 0 to t dt इंटीग्रल 0 to t dt क्या हो जाएगा t हो जाएगा तो इसको लिख लेते हैं t minus 0 राइट t minus 0 और ये क्या इंटीग्रल बन जाएगा this will become ln of CE minus Q divided by -1 राइट हम इंटीग्रल ऑफ ax plus b के फंक्शन की बात कर रहे हैं राइट इंटीग्रल ax plus b f of ax plus b की बात कर रहे हैं right yes so here we go ln of CE minus Q as it is divided by -1 here we go अब इसकी लिमिट्स कितनी लग जाएंगी हमारे पास ये लिमिट्स लग जाएंगी 0 to q right okay अब ln of CE minus Q जब हम करेंगे राइट तो जब अपर लिमिट लगाएंगे तो एज इट इज ln of CE minus Q लोअर लिमिट लगाएंगे तो ln of CE minus 0 ln of CE मिल जाएगा राइट तो मतलब क्या हुआ CE minus Q divided by CE alright CE minus Q divided by CE this is equal to e raised to the power of अब जो -1 था ये हम दूसरे साइड पे लेके आ सकते हैं this basically is equal to t by RC -1 अगर हम ऑपोजिट साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास -t by RC हो जाएगा और अब हम ln की बजाय राइट हम दोनों साइड e raised to the power ले रहे हैं तो e raised to power of ln of CE minus Q क्या हो जाएगा that gets cancelled out CE minus Q by CE this is equal to e raised to power -t by RC right अब LHS में see this is all mathematics right इंटीग्रेशन हमें करना आता है यहां पे हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं एनीबडी हु इज हैविंग एनी डिफिकल्टी इन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पूरे बड़े से चैप्टर में पूरा कवर कर रखा है ठीक है जस्ट गो एंड वॉच इट वंस थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ठीक है चलो 1 minus q by CE is equal to e raised to power -t by RC अब यहां पर what I can say is rearrange इसको थोड़ा सा और कर लो and I get a result out of it right मेरे पास ये फंक्शन आ जाता है थोड़ा सा rearrange करने से q is equal to CE times 1 minus e raised to power -t by RC okay RC जो होता है यहाँ पर RC को हम बोल देते हैं tau which is time constant and
आई टेल यू अगेन, टाइम कांस्टेंट होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या स्पेशलिटी है टाइम कांस्टेंट की. ओके अभी इसको याद करते समय ये ध्यान रखना, Q बराबर CE इंटू 1 माइनस ई रेज पावर माइनस टी बाय टाउ. ठीक है, ये RC बराबर टाउ होता है. चलो अब चार्ज तो हमने निकाल लिया, अच्छा सा फंक्शन भी आ गया, बड़ा सा फंक्शन आ गया. कुछ लोगों को स्कैरी लग रहा होगा, डोंट वरी अबाउट इट, हम अच्छे से पूरी इसकी जांच पड़ताल करने वाले हैं. ओके चार्ज तो आ गया. नाउ व्हाट अबाउट करंट? करंट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, राइट? करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू dq बाई dt. सो यही फंक्शन अगर मैं लेकर के टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे करंट मिल जाएगा, राइट? लेट्स सी. This is the function that comes out. I is equal to Q by RC e raised power minus t by RC. Okay? Okay. Q क्या है यहाँ पर? Q is the highest charge that the capacitor gets, which is effectively CE. Q is equal to CE. Q is equal to CE. Right. Now, once we have these two functions, let's analyze further about these functions. Okay? Here we go. यहां पर मेरे पास एक टेबल है जिसमें एट डिफरेंट टाइम्स वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Q एंड I. ऑलराइट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड करंट इन द सर्किट. एंड ये मेरे पास ग्राफ है. ऑलराइट, नाउ one thing that you can understand over here is Q is equal to, let me write the function also, it will be easier for you to understand. Q is equal to CE into 1 minus e raised power minus t by tau. Right? ये चार्ज का फंक्शन है. डू यू सी दैट एट t इक्वल टू 0, राइट? एट t इक्वल टू 0 ये e रेज टू द पावर 0 हो जाएगा, राइट? e रेज टू द पावर, आई एम गोना चेंज द कलर, e रेज टू द पावर 0 हो जाएगा. तो e रेज पावर 0 होता है 1, मतलब 1 माइनस 1, हमारे पास चार्ज 0 आ गया. और राइट, t इक्वल टू 0 पे चार्ज तो 0 था. एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है चार्ज बढ़ रहा है, बट लुक एट द स्लोप ऑफ द ग्राफ. The rate at which charging is happening, right, which is current, that keeps on decreasing. मतलब चार्ज तो बढ़ रहा है, बट पहले जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, पहले एकदम फटाफट चार्ज बढ़ रहा था, तेज रेट से बढ़ रहा था, राइट? एंड देन धीरे धीरे बढ़ रहा है. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे. लेटर ऑन दिस रेट ऑफ चार्जिंग, राइट, स्पीड, जितने स्पीड के साथ चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, वो कम होती जाती है, कम होती जाती है स्पीड, एज यू कैन सी, राइट? स्लोप जो है धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. एंड आगे बढ़ते जाओगे तो स्लोप टेंड्स टू 0, राइट? मतलब थियोरेटिकली कंप्लीट चार्जिंग के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा कैपेसिटर को, ओनली थियोरेटिकली. तो रियलिस्टिकली बहुत फटाक से चार्ज हो जाता है. ओके, दिस टाइम effectively is kind of like in milliseconds or even microseconds sometimes. ठीक है, जब तक ये almost like 99% चार्ज हो जाएगा. Okay, now if I talk about current, current क्या है? Current as a function of time is E by R e raised power minus t by tau. ठीक है, RC बराबर है tau. RC is equal to tau. ओके, अब करंट को अगर आप देखोगे तो एट t इक्वल टू 0, e raised to the power 0 is 1, that means current is E by R, right? E by R वैल्यू थी t इक्वल टू 0 पर. जस्ट as soon as you close the switch, जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया उस समय की हम बात कर रहे हैं. एंड दिस इज द हाईएस्ट रेट एट विच चार्जिंग वॉज हैपनिंग, राइट? डैम के जैसे आपने गेट खोल दिए बिल्कुल. Actually, there is a very good similarity in both the situations. Okay, I'm not going to go into detail, but जैसे ही आपने से डैम के गेट खोल दिया, क्या हुआ? इनिशियली एकदम तेजी से पानी आता है, फिर क्या होता है? जैसे जैसे लेवल इक्वलाइज होने लग जाता है, पानी धीरे धीरे जाने लग जाता है, राइट? That's what is happening. So here also, the current की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, राइट? And current does not really become 0 at any finite time, right? ये tends to 0 होता चला जाता है. That means current will become 0 as t approaches infinity. As t time approaches infinity, current will become 0 and complete charging will be done. Complete charge कितना आ जाएगा? CE बराबर, right? Okay. तो ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया,
अब एक चीज आप ध्यान से देखो, अगर मैंने t इज इक्वल टू RC रख दिया, अगर मैंने t इज इक्वल टू RC रख दिया तो क्या होगा, e रेज टू द पावर -1 आ जाएगा आपके पास, राइट? करंट की कैलकुलेशन में भी, चार्ज के कैलकुलेशन में भी e raised to power -1 आ जाएगा. E is a constant, you know, Euler's number just like pi. And जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपको दिखता है कि at t बराबर टाउ, t इक्वल टू टाउ RC, approximately 63% of the charging is done, right? 63% of total charge has already been deposited and approximately 37% of current remains in the circuit, right? ये वैल्यूज ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है. अब आगे देखते हैं कि टाउ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि करंट का सिनेरियो भी है, राइट? वी हैव गॉट करंट हियर एज वेल, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, सॉरी चार्ज है यहां पर, Q is equal to CE into 1 minus e raised power minus t by RC, and at different values of time, right? T equal to tau पे आपको 0.63 CE मिल रहा है, मतलब 63% of charging हो चुकी है. थोड़ा और आगे बढ़ोगे, 2 टाउ पे क्या हो चुका है, 2 टाउ पे अप्रोक्सीमेटली 86% चार्जिंग हो चुकी है. 3 टाउ पे क्या हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 95% चार्जिंग हो चुकी है. इफेक्टिवली 4 टाउ पे और ज्यादा, एंड 5 टाउ पे अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द चार्जिंग हो चुकी होती है. ऑलराइट, सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन अ चार्जिंग सर्किट कितना टाइम लगता है पूरा चार्ज होने में? प्रैक्टिकली स्पीकिंग 99% ऑफ द चार्जिंग होने में 5 टाउ अमाउंट ऑफ टाइम लगता है. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. चलो, in one time constant capacitor is charged up to 63% of its steady state value and it takes around 5 time constants to reach steady state value. ठीक है, अब steady state क्या होता है? Think about it. steady state मतलब steady में जब सर्किट आ जाता है, जब पूरी चार्जिंग हो चुकी है, तब कितना चार्ज है, वो क्या स्टेट है, कितना चार्ज है तब, कितना करंट है तब, राइट? दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट वैल्यू. ओके, तो जब पूरी चार्जिंग हो चुकी होती है तो स्टेडी स्टेट चार्ज कितना हो जाएगा, CE, राइट? एंड जब पूरी चार्जिंग हो चुकी होती है तो अब और चार्जिंग हो ही नहीं रही है, तो करंट कितना हो जाएगा, 0, राइट? तो एट स्टेडी स्टेट charge becomes equal to CE, current becomes equal to 0. Okay? Now, there is one more very important thing for you to understand here, is that rate of charging, right? Rate of charging क्या होता है? ये slope, मतलब current. आपने देखा rate of charging decrease होता जाता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, right? Yes. अगर ये decrease नहीं होता, अगर चार्जिंग कांस्टेंट रेट से हो रही होती, कितना कांस्टेंट रेट, जिस रेट से चालू हुई, राइट? चालू कितने रेट से हुई? चालू हुई E by R रेट से, राइट? I नॉट की वैल्यू कितनी थी, E by R, इनिशियल करंट. अगर यही करंट मेंटेन रहता सर्किट में तो ये पूरी की पूरी चार्जिंग खत्म हो जाती टाउ टाइम में. ओके, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम कांस्टेंट. इट इज दैट सिंस charging happens at a reducing rate, that is why ideally it takes, you know, theoretically it takes infinite amount of time for the circuit to charge, capacitor to charge. But अगर constant rate से charging हो रही होती at the initial rate of charging, तो tau time में ही पूरी charging खत्म हो गई होती, right? Okay. Once we have understood this, we'll be able to understand the next part very very well, क्योंकि same analogy आती है. ठीक है, अब डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट्स में देखते हैं हम फटाफट. डिस्चार्जिंग कैपेसिटर कैसा होता है? अच्छा भाई, डिस्चार्ज हो रहा है मतलब ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर था, मतलब अब हमको सर्किट में बैटरी की जरूरत नहीं है. जब चार्जिंग कर रहे होते हैं तो बैटरी की जरूरत होती है. नाउ आई कैन लुक एट दिस सर्किट एंड आई कैन से दैट दिस कैपेसिटर अर्लियर वाज चार्ज्ड यूजिंग दिस बैटरी, and then after the charging was done we have switched off the battery, right? हमने स्विच से ये सर्किट को चेंज कर दिया. अब क्या बोल सकते हैं हम? यहां पे देखो, जैसे ही हमने स्विच चेंज किया क्या मिला हमको मिला बैटरी तो चली गई अब सर्किट में से, एंड वी हैव गॉट अ फुली चार्ज्ड कैपेसिटर.
कितना चार्ज है, ई वोल्टेज की बैटरी अगर लेकर के हमने चार्ज किया तो सीई चार्ज आ चुका होगा इस कैपेसिटर पे. ओके, सो नाउ इट्स अ फुली चार्ज कैपेसिटर, सीई चार्ज है, अब ये डिस्चार्ज होगा, राइट. ओके, डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, अगेन एज सून एज यू क्लोज द स्विच द चार्ज स्टार्ट्स टू रिड्यूस एंड करंट डेवलप हो जाएगा सर्किट में, राइट. So again, we can do the same thing as we did in the charging circuit. क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं at any given instant if charge is Q on the capacitor, right? Plus Q है यहाँ पर, minus Q है यहाँ पर, तो and at that particular instant current is I. Then I can apply KVL, I can figure out a relation between charge and current, and then I'd be able to, solve that differential equation, get the function, and so on and so forth. चलो फटाफट करते हैं इसको. If at time t charge on the capacitor is Q, then what is happening to this charge on the capacitor? It's reducing, right? And the rate at which this charge is reducing is the current in the circuit, right? So now I can say that I is equal to minus dq by dt. Why? Because we're not talking about increase in charge. We're not talking about rate of increase of charge. We're talking about rate of reduction in charge, rate of decrease of charge, right? तो minus आ जाएगा यहाँ पर एक. Okay. अगर ये simple है तो चलो KVL लगा लेते हैं and let's solve the differential equation. Again, let's start from say point A. अगर मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया तो क्या बोलूंगी, वी ए एंड देन क्रॉसिंग द कैपेसिटर, राइट. क्रॉसिंग द कैपेसिटर आई एम गोना हैव माइनस क्यू बाय सी, देन आई एम गोना क्रॉस द रेजिस्टर. रेजिस्टर जब क्रॉस करेंगे केवीएल जो लगा रहे हैं हम ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज. केवीएल अगर क्लॉकवाइज लगा रहे हैं तो कैपेसिटर को क्रॉस कर रहे हैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, मतलब देयर इज अ ड्रॉप इन वोल्टेज, कितना, Q by C का drop, and then when we're crossing the resistance, we're crossing in the opposite direction of flow of current. मतलब there will be a rise in potential. कितना rise? Plus IR. This बराबर VA again, A पर वापस पहुंच गए हम तो cancel हो जाएगा ये, ठीक है. And what do we get? We get I is equal to Q by RC, right. As soon as I get this, I can say that this I is equal to Q by RC, right. Now, this is again a relation जिसमें दो variables हैं, I भी variable है, Q भी variable है, तो replace करना पड़ेगा, right. Let's get it as one differential equation and one Q या I दोनों में से कोई एक variable हम रखते हैं. तो चलो I बराबर d minus dq by dt. Let's substitute that. This is equal to minus dq by dt. What do I get? I get minus dq by q is equal to 1 by rc dt. Minus इस side भी रख सकते हैं and we can integrate, right? Limits again will be very simple. Lower limit will just be the initial values. क्या क्या initial values थी? जब t बराबर 0 था तब ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज था, मतलब चार्ज कितना था, कैपिटल Q, राइट. कैपिटल Q कितना है, CE, ओके. एंड एट एनी टाइम t वी कैन से दैट चार्ज इज Q, ओके. अब इसको फटाफट इंटीग्रेट कर लेते हैं. ln ऑफ Q by Q is equal to minus t by RC and I can write it in terms of exponential as well. तो क्या मिलेगा, ln हट जाएगा यहाँ से और this will become e raised to the power of minus t by rc, right. So क्या आ जाता है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q is equal to capital Q e raised power minus t by rc, और rather rc यहाँ पर tau होगा. Again rc is equal to tau, time constant. I can say that Q is equal to capital Q e raised power minus t by tau, right. Q as a function of time comes out equal to CE e raised power minus t by tau. Okay. E क्या है? E is the EMF of the battery that was used to charge the capacitor in the first place. चलो, अब हमने चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो निकाल लिया फटाफट. अब करंट भी निकाल लेते हैं. करंट कैसे निकालेंगे? I is equal to minus dq by dt. ये मालूम है हमको. So
I will be equal to minus of dq by dt. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सिंपल करंट आ जाएगा. I is equal to q by rc e raised power minus t by rc. Okay, this also can be written as I is equal to e by r e raised power minus t by tau. Now मैथमेटिक्स तो अब हमने कर ली. अब चलो let's understand the variation, let's understand what is actually happening to charge, कैसे वेरी कर रहा है, what is the significance of this variation and so on, right? Okay, let's see. Again we have a similar analysis done, right? यहाँ पर हमारे पास charge as a function of time है and current as a function of time है. So now we can say that here I've got a table, right? At different time what are the values of charge and current. Okay, just like before. All right, हमारे पास functions हैं यहाँ पर. At t equal to 0, as soon as you close the switch, what happened? The charge was q itself. क्यों? क्योंकि discharging circuit है ना, पहले तो capacitor charge था completely. And what about current? करंट एट टी इक्वल टू 0, यहीं पर अगर आप t बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा? q by rc, राइट, विच इज इक्वल टू e by r ऑल्सो, राइट. ओके, हमें मालूम है कौन सी बैटरी यूज की थी हमने चार्ज करने के लिए कैपेसिटर को. अब हमें मालूम है कौन सा रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं डिस्चार्ज करने के लिए सर्किट को. तो हियर वी गो. नाउ एज टाइम गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट, अगर t approaches infinity, if t approaches infinity, what happens to the charge? Becomes 0 and current also becomes 0, right? अब t is equal to tau substitute करोगे तो again आपको बहुत similar values मिलेंगी. At t equal to tau we have 37% of discharging, 37% of charge remaining, मतलब 63% of discharging has been done, right? Charging के केस में t equal to tau में 63% of charging was done. Discharging के केस में अगर 63% discharging हो चुकी है, मतलब 63% चार्ज जा चुका है, तो कितना बचेगा? 100 minus 63, right? Which is 37% चार्ज बच गया है. And the value of current right now is also 37% of the original value, right? Okay, very easy. Now that we have all of this in the table, let's understand the graphs as well. All right, here we go. Variation of charge as a function of time and current with time, right? अब यहाँ पर दोनों functions बिल्कुल similar functions आते हैं. As you can see, both are exponential functions. Q is equal to Q naught, or rather CE, e raised power minus t by tau, and I is equal to e by r, e raised power minus t by tau, right? अगेन एट t इक्वल टू 0 चार्ज भी मैक्सिमम था. क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है भाई, चार्ज तो कम होता ही चला जाएगा. एंड एट t इक्वल टू 0 करंट भी मैक्सिमम था, राइट. जैसे जैसे करंट कम होता जा रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ डिस्चार्जिंग कम होता जा रहा है, मतलब इसका स्लोप भी कम होता जा रहा है. एंड दैट इज वाई डिस्चार्जिंग में भी बहुत टाइम लगता है थियोरेटिकली, राइट. प्रैक्टिकली क्या होता है? Practically again the discharging happens very quickly, and that is what happens in the defibrillator as well, right? आपके फोन कैमरा में भी वही होता है. जो कैमरा फ्लैश आता है आपका, वो भी किसके कारण आता है? डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. एक कैपेसिटर होता है, काफी सारा चार्ज होता है, जैसे ही क्विकली डिस्चार्ज होगा बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट्स व्हाट गिव्स अ लाइट इन द कैमरा फ्लैश, राइट. अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगेन टाइम कैसे आते हैं ये? 5 टाउ में पूरी डिस्चार्जिंग हो जाएगी, and this is in again very very small time, milliseconds, microseconds में आता है ये, right? चलो फटाफट देख लेते हैं. again q as a function of time यहाँ पे दिया हुआ है. same funda applies over here as well. क्यों? क्योंकि mathematically similar function आता है ना. okay, तो वन टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है 63%, मतलब रिमेनिंग चार्ज जो होता है वो 37% होता है. एंड ऑफ इट स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट वैल्यू, ओके, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग स्टेडी स्टेट कब आएगा? जब चार्ज खत्म हो गया कैपेसिटर के पास, राइट. ओके,
It takes around 5 time constants to reach steady state, and if rate of discharging is remain constant, then time taken for full discharging is tau, right? So here as well, the rate of discharging, see, ये रेट कम होता जा रहा है. अगर इनिशियली जो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग था वही मेंटेन रहता तो ये देखो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता एंड यहां पर टाउ पर आकर के डिस्चार्जिंग कंप्लीट हो जाती, राइट? बट राइट नाउ दैट इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग. 5 टाउ अप्रोक्सीमेटली लगता है डिस्चार्ज होने में, 99% ऑफ डिस्चार्जिंग टू बी डन. ओके, ऑलराइट. नाउ दैट वी आर डन विद दिस, लेट्स अंडरस्टैंड स्टेडी स्टेट बिहेवियर, राइट? फिर उसके बाद हम ये सारा कुछ अप्लाई करेंगे एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है? एक एक करके चीजों की थ्योरी पढ़ लेते हैं. पहले चार्जिंग में क्या होता है पढ़ लिया हमने, डिस्चार्जिंग में क्या होता है ये भी पढ़ लिया हमने. अब स्टेडी स्टेट में क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेडी स्टेट बिहेवियर के क्वेश्चंस कई बार आते हैं, ठीक है? सो हियर अगर मेरे पास अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर को अगर मैंने सर्किट में कनेक्ट किया बैटरी के साथ तो क्या होगा? वेल, इट विल स्टार्ट गेटिंग चार्ज एंड देयर विल कम अ टाइम व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड, राइट? जब ये फुली चार्ज हो गया तब क्या होगा? तब यहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू, राइट, आ जाएगा चार्ज कितना? सीई, ऑलराइट, प्लस सीई एंड माइनस सीई. एंड व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी नो मोर करंट थ्रू दिस, राइट? इसके अक्रॉस करंट अब 0 हो जाएगा. मतलब क्या हुआ? दिस कैपेसिटर विच इज कंप्लीटली चार्ज्ड नाउ will start to act like a broken circuit, right? अब ये completely charged capacitor, मतलब steady state में charged capacitor will act like a broken circuit, okay? T equal to 0 पर क्या हो रहा था? T equal to 0 पे कुछ भी चार्जिंग नहीं थी इसकी, कुछ भी चार्ज नहीं था इसके ऊपर, तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ रहा था इसके अक्रॉस, and it was behaving like a straight wire, short circuit. So an uncharged capacitor T equal to 0 पर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, बट जब चार्जिंग हो गई तब क्या होगा? When charging is done, then it is going to behave like an open circuit, ठीक है? Alright. अब अगर हम चार्ज कैपेसिटर की बात करते हैं तो T equal to 0 पर चार्ज कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है? It is behaving like a battery of EMF E, right? एंड ये E कितने के बराबर है? दिस E इज इक्वल टू Q बाय C, राइट? जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर रिड्यूस होता जाएगा, राइट? बिकॉज इट्स लूजिंग इट्स चार्ज, ओके? बट एट T equal to 0, जस्ट व्हेन discharging has started, then it will behave like a battery of EMF potential difference, right? कितना E? Q by C, okay? Now as I said before as well, चार्ज कैपेसिटर है जब आपके पास, आपने चार्जिंग खत्म कर दी है तो स्टेडी स्टेट में कैसा बिहेव करेगा? ये कंप्लीट हो चुकी है चार्जिंग इस कैपेसिटर की एंड इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ ब्रोकन सर्किट, राइट? At T approaches infinity, this reaches steady state and the capacitor was going to behave like a broken circuit, even if it was initially charged or uncharged, right? थोड़ा बहुत चार्ज होगा भी इस कैपेसिटर में, बट आप जब इस पे से ये पहले चार्ज था, ठीक है? अगर ये पहले मान लो 10 वोल्ट से चार्ज था भी, देन ऑल्सो इफ यू आर कनेक्टिंग इट विथ अ बैटरी ऑफ से 30 वोल्ट, तब आप क्या कर रहे हो? आप पार्शियली चार्ज कैपेसिटर को और चार्ज कर रहे हो, राइट? अब भी क्या होगा? इन दिस सर्किट ऑल्सो, आफ्टर द एंटायर चार्जिंग इज डन इन स्टेडी स्टेट, as T approaches infinity, this will behave like an open circuit, broken circuit की तरह behave करेगा ये, ठीक है? Alright. Now that we've understood this really well, RC circuits mostly, right, students को थोड़ी सी difficulty होती है समझने में, so make sure you solve questions. Alright, and all of this theory again is explained very beautifully in the Akash Byju's app as well. Right now it is free. नहीं आपने download किया है तो कर लो download. Alright, because again it's free right now and the personalized practice is really good. Okay, one of my favorite things about the app. Okay,
Let's move on. And till now, I hope everything is crystal clear. सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका है. अगर समझ में आ चुका है, so make sure you don't forget to share it with the friends. Okay? और like वाइक भी दबाई देना. चलो. Let's move on. Let's get to the questions part of it. जब हम अच्छे से समझेंगे concepts में है क्या. Okay? Alright. Let's start. Here we go. The first question of the day. A resistor with resistance of 10 mega ohm, right? बहुत बड़ा resistance है. It's connected in series with a capacitor of capacitance 1 microfarad. Battery with EMF 12 volt. Before the switch is closed at time t equal to 0, the capacitor is uncharged. What fraction of the final charge is on the plates at time t equal to 46 seconds? और ये वैल्यू भी हमें दे रखी है, देखो कितना सही है. E raised power of minus 4.6 is given as 0.01. Okay. So first understand, let's see. क्या पूछा है हमसे? What fraction of the final charge is on the plates at this particular time? मतलब अगर हमें charge as a function of time मालूम है, then we can directly apply, right? Time का value substitute करो, charge आ जाएगा. Okay, let's do that. Here we go. Resistance की value भी दे रखी है, EMF दे रखा है, time दे रखा है, capacitance दे रखा है. Let's write. This is a charging circuit. चार्जिंग सर्किट में क्या होगा? Q is equal to CE into 1 minus e raised power minus t by tau, right? Tau क्या है? RC. Okay. Tau जब हम कैलकुलेट करेंगे R into C 10 into 10 raised power 6 into C which is 1 into 10 raised power minus 6, कितना आया ये हमारे पास? 10, right? And टाइम कांस्टेंट, राइट? जब आप ओम और फैरेड को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेकेंड मिलता है एज अ यूनिट. यू कैन डू द डायमेंशनल एनालिसिस आफ्टर द क्लास एंड लुक एट इट. ठीक है, सो आपको टाइम कांस्टेंट जो होगा सेकेंड्स में मिलेगा. ऑलराइट, सो दिस बिकम्स 10 सेकेंड्स, राइट? Which, by the way, as time constants go, is a very, very large value. Generally, time constants आपके पास milliseconds और 10 to the power minus 4 seconds, 10 to the power minus 5 seconds इस तरीके से आते हैं. ठीक है, सो लेट्स फाइंड द चार्ज. CE, C कितना है? 10 raised power minus 6 farad into E 12 volt, or rather let's keep it CE only because हमसे परसेंटेज पूछा हुआ है, फ्रैक्शन पूछा हुआ है. CE into 1 minus e raised power minus t by tau. T कितना है? 46 seconds. 46 divided by 10, right? Tau की वैल्यू आई है 10 seconds. So ये आ गया मेरे पास e raised to the power of minus 4.6, जिसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में. So Q is equal to CE times 1 minus 0.01, which is what? 0.99 CE. मतलब क्या हुआ? Yes, approximately 99% of charging is done, right? So कितना फ्रैक्शन चार्जिंग हो गया? 0.99 फ्रैक्शन चार्जिंग हो गया. That's it. 0.99. Or if you look at the options, we see the closest option being option number A. All right? Okay. I hope this is completely clear. Let's move on to the next question. Here we go. यहाँ पे हमसे पूछा है find the equivalent resistance between points A and B for the given circuit when the circuit is in steady state. Right? अब आ गया steady state के ऊपर बात. तो अब देखते हैं किस टाइप का सर्किट है ये. जाहिर सी बात है, यहाँ पर बैटरी है, ये चार्जिंग सर्किट है एंड काफी सारे रेजिस्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पर. तो लेट्स सी स्टेडी स्टेट में क्या होगा. ए और बी पॉइंट्स के अक्रॉस हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा हुआ है. In steady state, the capacitor has been completely charged and it will act like a broken circuit, right? अगर कैपेसिटर completely charged हो चुका है, it will behave like a broken circuit. मतलब यहाँ पर तो कोई करंट पास नहीं हो रहा, right? इस ब्रांच में करंट 0 है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा. अब जिस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, उस रेजिस्टर का आप क्या करोगे? उस रेजिस्टर को हम डिस्कार्ड कर देंगे, राइट? वी अंडरस्टैंड दिस ऑलरेडी. इफ देयर इज नो करंट फ्लो अक्रॉस अ रेजिस्टर, देन वी कैन डिस्कार्ड दैट रेजिस्टर. ओके, तो यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा हमारे पास? इक्विवेलेंट सर्किट विल बी दैट हियर वी हैव गॉट R0, here we have got another R0, here we have got another R0. इसके थ्रू तो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, बीच की ब्रांच, राइट? एंड देन here we have got another R0,
and then we have A and B. A और B के across battery connected है. There we go. We know how to find out equivalent resistance, right? Series parallel आता है हमें. चलो, come on, quickly tell me what is the value of R0 that comes out? R0, R0, R0. 3 R0 series में है, मतलब 3 R0 हो गया. And this R0 is in parallel, मतलब 3 R0 parallel R0. कितना आ जाएगा? This will become equal to 3 R1 R2 upon R1 plus R2, मतलब 3 R0 by 4 आ गया हमारे पास. Right? Here we go. 3 R0 by 4 is the equivalent resistance here. Chalo, option number A is the correct answer. I hope you've understood what to do when there is steady state, right? अगर कैपेसिटर चार्ज है और स्टेडी स्टेट में चार्जिंग सर्किट का स्टेडी स्टेट आ चुका है तो क्या होगा? इट विल एक्ट लाइक अ ब्रोकन सर्किट. और अगर डिस्चार्जिंग सर्किट का स्टेडी स्टेट हो रहा है, मतलब कैपेसिटर पहले चार्ज था, अब इसमें चार्ज 0 हो चुका है, then it will act like a straight wire, right? Okay. Let's solve another question, right? Here we have in the given circuit, when the switch is closed, the capacitor charges with a time constant off. And here is a shortcut that I'm going to teach you, okay? नीट में भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं. यहां पे जबकि आपको दिख रहा होगा कि दिस चार्जिंग सर्किट इज नॉट योर स्टैंडर्ड चार्जिंग सर्किट, राइट? स्टैंडर्ड में हम क्या देखते हैं? हमारे पास है एक कैपेसिटेंस, एक रेजिस्टेंस एंड एक बैटरी. 1 कैपेसिटेंस, 1 रेजिस्टेंस, 1 बैटरी. दैट इज देयर इन अ स्टैंडर्ड चार्जिंग सर्किट. उसका हमें डायरेक्टली टाइम कांस्टेंट निकालना आता है. उसका हमें कहते हैं कि ओके, इफ दिस इज सी, दिस इज आर, दिस इज ई, देन टाउ इज इक्वल टू आर सी. ये मालूम है हमको. बट अगर आपके पास कोई अलग तरीके का सर्किट दिया हो, say for example this, right? Here you can see that there are different resistors. यहां पर एक सीरीज में रेजिस्टर है with the capacitor, there is another parallel resistor, right? तो अब आप क्या करोगे? In this case you have a simple shortcut using which you can find time constant. ठीक है? Actually, this shortcut is based on a theorem, Thevenin theorem बोलते हैं इसको, जो कि आगे जाकर के इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके कोर्स में पढ़ाई जाती है. एंड जेई के लिए भी हम पहले पढ़ा देते हैं पूरी की पूरी थ्योरम. बट नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से पूरी थ्योरम आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे. इट्स नॉट इन द सिलेबस ऑल्सो. बट उस थ्योरम से निकाला हुआ डिराइव्ड एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, whenever you want to find R equivalent, right? R Thevenin बोलते हैं इसको. अगर मुझे इस सर्किट को का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो, इक्विवेलेंट चार्जिंग सर्किट which will contain 1 capacitance, 1 resistance and 1 battery, right? अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना हो, ओके, टाउ की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? टाउ विल बी इक्वल टू R equivalent into C, where R equivalent can be calculated by shorting any and all batteries in the circuit. ठीक है, तो ये मेरे पास जो चार्जिंग सर्किट है इसमें मैंने इस बैटरी को शॉर्ट कर दिया. ठीक है, एक बैटरी है सर्किट में, अगर एक से ज्यादा बैटरीज होती उनको भी शॉर्ट कर देते आप. ठीक है, अब जैसे ही मैंने इधर पे शॉर्ट किया, मुझे क्या मिला? मुझे मिल गया कि दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज व्हाट आई सी इन द सर्किट, राइट? अब आफ्टर शॉर्टिंग द बैटरी, आई नीड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर. ओके, सो कैपेसिटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस टोटल आ जाता है? एज यू कैन सी, जैसे यहां पर चार्जिंग होगी, देन द amount that is charging this particular capacitor will be corresponding to R, right? Here we go. R equivalent आ गया हमारे पास R, and we can say that time constant is equal to RC, right? अगर आप सिंपली भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कि ये बैटरी जो है, right? Do you see this? When charging happens in the circuit, when the
switch is closed. Do you see that the current is being provided in two different branches? राइट ये जो बैटरी है, ये जो करंट प्रोवाइड कर रही है, दो ब्रांचेस में प्रोवाइड कर रही है. एक तो पहली ब्रांच दैट कंटेन्स ओनली रेजिस्टेंस, सेकेंड ब्रांच दैट कंटेन्स कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ. राइट, so now I can say that if I1 I2 are the two currents provided by the battery, जहां पे टोटल करंट जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है I1 प्लस I2 प्रोवाइड कर रही है. राइट, since there is no resistance in the series in the battery, I can immediately say that यहां पर कि effectively हमारा चार्जिंग सर्किट कौन सा है? This circuit. Right? That's it. ये हमारा चार्जिंग सर्किट है containing this battery, this capacitor and this resistor. That's it. And कौन सा करंट चार्ज कर रहा है? I1 current is responsible for charging the capacitor. I2 current simply resistance के through होके जा रहा है. This is not responsible at all. This is not included in the charging circuit at all. Right? Superposition principle जब हम current electricity में करते हैं उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं. Right? So these two circuits can be superposed and we can say that potential drop across these two terminals is equal to E itself. Right? Okay, here we go. Option A is the correct answer. Now, let's solve another question. Here we go. At t equal to 0, switch S1 is closed and remains closed for a long time. S2 remains open. Now, S1 is opened and S2 is closed. Find out the charge on plate P1 of the capacitor long after that moment. Right? Okay. T equal to 0 पे S1 closed था. Let's understand what's happening here. S1 closed था, S2 open था. मतलब what is happening? This capacitor is being charged by the first battery. Right? If I call E EMF की battery. किस तरीके से चार्ज आएगा? Let's go. Initially, S1 is closed, S2 is open. मतलब this is the charging circuit and यहां पर चार्ज आ जाएगा प्लस CE, यहां पर चार्ज आ जाएगा माइनस CE. Right? Okay. Then what happens? After a long time, right? मतलब पूरी चार्जिंग हो गई इस कैपेसिटर की. After a long time, S1 is opened and S2 is closed. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब S1 को ओपन कर दिया एंड S2 को क्लोज कर दिया. तो ये वाला सर्किट तो चला गया. दिस सर्किट इज नॉट कनेक्टेड नाउ. व्हाट इज कनेक्टेड? दिस 2E EMF की बैटरी कनेक्टेड है. एंड कैसे कनेक्टेड है? यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है. राइट? तो नाउ कैन आई से दैट दिस विल स्टार्ट चार्जिंग इट इन द रिवर्स मैनर. राइट? हमारे पास ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर है जो कि ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिया गया है विथ अनदर बैटरी. नाउ द बैटरीज EMF इज 2E. तो ये कितना चार्ज कर देगी? करस्पॉन्डिंग टू 2E EMF. मतलब ये कैपेसिटर पहले अपने एग्जिस्टिंग चार्ज से डिस्चार्ज होगा, 0 पे आएगा, देन इट विल गेट चार्ज्ड अगेन. क्यों? क्योंकि पोलैरिटी ऑपोजिट है. राइट? सो नाउ आई कैन से दैट हियर वी गो. कैसे चार्ज कर रही है ये? Positive terminal of the battery will keep giving out positive charge. Right? तो finally क्या होगा? Finally potential drop across the capacitor will become the same as potential drop across the battery. Right? तो potential drop across the battery है 2E. मतलब यहां पर 2E drop का capacitor charge हो जाएगा. Capacitor will get charged with 2E voltage. Okay? And later S1 is closed, S1 is open and S2 is closed. Right. So now how will the finally V is equal to 2E and the charges will be plus 2E and plus 2CE and minus 2CE. Right? Charge is equal to potential drop multiplied by capacitance. Okay. Now because the polarity is opposite, new charges on the capacitor will be, यहां पर प्लस 2CE आ गया है और यहां पर माइनस 2CE आ जाएगा. राइट? अब पूछा क्या है? प्लेट P1 पे कितना चार्ज आता है. प्लेट P1 इज दिस इज प्लेट P2.
प्लेट P1 पे पहले आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ चार्जिंग CE चार्ज आ चुका था, प्लस CE. आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ चार्जिंग इज डन कंप्लीटली, कितना चार्ज आ गया? -2 CE चार्ज आ गया, राइट? सिर्फ P1 का चार्ज यहां पे पूछा है तो हम बता सकते हैं. एंड इंसिडेंटली हाउ मच चार्ज इज गिवन बाय द बैटरी? सेकेंड बैटरी ने पहले तो CE चार्ज दिया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके बाद 2 CE चार्ज और दिया टू चार्ज द कैपेसिटर, राइट? That means the second battery ended up giving 3 CE amount of charge. Although there is not asked in the question, again इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कितना चार्ज दिया फाइनली बैटरी ने, राइट? Okay, so here we go. As you can see, plate P1 will have -2 CE charge. Okay? All right. And with this, I'm going to end today's session. As you know, my sessions are there every weekday at 4 o'clock, and we have other extra bonus sessions happening as well. So make sure you are subscribed to our Telegram channel, जहां पर कि generally आपको रोज का टाइम टेबल दिया जाता है, सारे नोट्स भी आते हैं, DPPs, homework questions, etc. are given. And make sure once you attend the classes, प्रैक्टिस आफ्टर द क्लासेस. ओके, आकाश बायजूस ऐप में बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए. पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस विल हेल्प यू strengthen your weak topics as well. Okay, so keep learning, keep happy, stay healthy. Until next time, happy learning. Bye bye.